चलो सो स्टार्ट करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स को, आज फिनिश करते हैं अच्छे से, है ना। आज और कल 1 घंटे में फिनिश करेंगे मोर और लेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट क्लास वी हैव डन formulation of classical mechanics, है ना. So what we have done, we have Lagrangian of a system, and that is nothing but t minus v. This is my Lagrangian, and obviously this Lagrangian is function of generalized coordinate, generalized velocity, and time. This Lagrangian is function of generalized coordinate, generalized velocity, and time. And from there, we can easily go for Lagrange's equation of motion. And what is this? Del L upon del Qi dot minus del L del Qi is equal to what? 0. So this is nothing but Lagrange's equation of motion. Okay. Now, this equation of motion is equivalent to Newton's law. So whenever you have equation of motion, this is actually Newton's law. F is equal to ma. ठीक है, ये F is equal to ma की equivalent होगा. Now we have to learn little bit of more cyclic coordinate and conservation of momentum. Then we will go for different types of problems. ठीक है. होगा इक्वल, आप देखोगे दिस इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स लॉ. कर सकते हैं मतलब, अभी देखेंगे, अभी आएगा तो देख लेंगे, है ना. So this is equivalent to Newton's law. ठीक है. And what is your cyclic coordinate? So let's go for cyclic coordinate. Let's go for cyclic coordinate. So what is cyclic coordinate? So if Lagrangian L is not explicit function of particular generalized coordinate, not explicit function of particular generalized coordinate qk, but it may be function of generalized velocity. Okay, it may be function of generalized velocity, it may be explicit function of generalized velocity, है ना, but it may be explicit function of generalized velocity qk dot. Then qk is identified as cyclic coordinate. Then qk is identified as cyclic coordinate. Okay, so ये qk क्या है, ये cyclic coordinate को identify कर रहा है. Okay, so this is just identified as cyclic coordinate. So what is meaning of not explicit function? Means if you have del L upon del qk is equal to 0, this is very important. पार्शियल डेरिवेटिव से चेक कर रहे हो, टोटल डेरिवेटिव से चेक नहीं कर रहे हो. दैट इज देन दिस पर्टिकुलर qk is not is identified as what? Cyclic coordinate. ठीक है, लेकिन ये 0 है, that doesn't imply that del L upon del qk dot is equal to 0. ये जरूरी नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि आपका qk का तो एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है, लेकिन qk डॉट का एक्सप्लिसिट फंक्शन है. एग्रीड? सो ड्यू टू साइक्लिक कोऑर्डिनेट,
obviously there is not any change in degree of freedom. डिग्री ऑफ फ्रीडम में कोई भी चेंज नहीं होगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम पर फर्क नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो फर्क कहां पड़ेगी, कैसे हम इस चीज को समझ सकते हैं? ठीक है, उसके लिए हमें नेक्स्ट समझना पड़ेगा जनरलाइज्ड मोमेंटम. सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर व्हाट? जनरलाइज्ड मोमेंटम is identified as cyclic coordinate. Is identified as cyclic coordinate. Let's go for what? Generalized momentum. है ना? ये तो क्लियर है ना? Obviously, if you have velocity, then momentum is the very obvious thing. ठीक है? So, what is generalized momentum? What is generalized momentum? If qk is generalized coordinate, if qk is generalized coordinate, then generalized momentum corresponds to q और qi लिख दो, है ना, q के मत लिखो, qi लिख दो. If qi is generalized coordinate, then generalized momentum corresponds to qi is pi. Generalized momentum corresponds to या conjugate to, ये आपको हमेशा समझना है, ये वर्डिंग समझना है. First you have defined generalized coordinate, then corresponding momentum you have to define. ठीक है? So that is what generalized momentum is pi, and this pi is defined as del L upon del qi dot. Very good. So this will be what? Qi dot, and this is identified as what? Pi. ठीक है? It is not necessary that generalized momentum has always dimension of kg meter per second. No, it is not necessary. It may be angular momentum, it may be linear momentum, depends on what is the dimension of generalized coordinate. क्या generalized coordinate की dimension होगी, उसी के ऊपर ये सारा का सारा कहानी डिस्कस किया जाएगा. ठीक है? So this is your pi and that is your del L upon del qi dot. ये हमेशा ध्यान रखोगे, क्या है ये? del qi dot. And what is qi dot? Generalized velocity, where qi dot is nothing, qi dot is generalized velocity. Now, अब साइक्लिक कोऑर्डिनेट हम लोगों ने क्यों देखा, क्यों पढ़ा, उसका हम देखते हैं, है ना? साइक्लिक कोऑर्डिनेट का क्या रोल है? So now let's try to go for analysis of cyclic coordinate. यहाँ तक क्लियर है? Okay. So if qk is your cyclic coordinate, if qk is cyclic coordinate, then we can write the equation of motion for cyclic coordinate, है ना? If qk is cyclic coordinate, what will be corresponding momentum, generalized momentum? Some pk. So that will be pk, and that value is del L upon del qk dot. This pk is nothing but del L upon del qk dot. Okay. And if it is cyclic coordinate, that means del L upon del qk is equal to 0. Agreed? Okay. And now if you are going for the equation of motion, d upon dt, del L upon del qk dot minus del L upon del qk is equal to 0. ठीक है? That value equal to what? 0. So hence qk is cyclic coordinate, then this value is equal to what? 0.
क्लियर है ये? दिस वैल्यू इज 0, दैट मीन्स d अपॉन dt del L upon del qk dot must be equal to 0, which means what is del L upon del qk dot? Nothing but what? Generalized momentum. So that value is d upon dt pk is equal to 0. ठीक है? That value pk is equal to 0. That means your pk is constant. So ये pk आपका क्या हो गया? Constant हो गया. सो जनरलाइज मोमेंटम कंजर्व है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कि आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट साइक्लिक है या नहीं है। अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट साइक्लिक है, देन योर जनरलाइज मोमेंटम इज कंजर्व। सो यू हैव वन टाइप ऑफ सिमेट्री। एक सिमेट्री आपने आइडेंटिफाई कर ली कि व्हेन योर जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज cyclic, then obviously corresponding momentum is conserved. ठीक है? So this is one of the basic definition and basically formulation of classical formulation of basically Lagrangian देख रहा है। ठीक है? So now next target is that we should go for different types of problem. ठीक है? So हम लोग different types के problem के ऊपर जाते हैं। ठीक है? So एक problem तो just मैं ऐसे ही कर देता हूं फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेफिनेशन। ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग अपने मेन टाइप के प्रॉब्लम के ऊपर जाएंगे। ठीक है? ओके, कुछ पूछना है? क्लियर है ना? ओके, डेफिनेशन देखो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप डेफिनेशन नहीं समझ पा रहे हो देन ऑब्वियसली इट विल क्रिएट अ हैवक। ठीक है? डेफिनेशन को के ही ऊपर आपके प्रॉब्लम बन जाएंगे। इफ यू हैव क्लियर कट डेफिनेशन इन योर माइंड, साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या है, उसका क्या कॉरस्पॉन्डिंग होता है, तो आपका 80% क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। क्योंकि मेनली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे वो कंजर्वेशन से ही रिलेटेड होंगे। हमेशा देखोगे कंजर्वेशन प्रिंसिपल के बारे में बात करेगा। ठीक है? और क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉर्मुलेट ही इसलिए किया गया है बिकॉज यू कैन फाइंड न्यूअर एंड न्यूअर टाइप ऑफ कंजर्वेशन प्रिंसिपल। आप नए से नए टाइप के बेसिकली आप सिमेट्रीज को ढूंढ सको, है ना? जितनी ज्यादा सिमेट्री ढूंढोगे उस चीज के बारे में उतना ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन पता होगा। ठीक है? सो इसी कारण आपको, और फर्स्ट आपको सिमेट्री इन अ टर्म ऑफ मोमेंटम मिलता है, वो कहां मिलता है? साइक्लिक कोऑर्डिनेट से मिलता है। ठीक है? लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात छूट जाती है लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन में, वो क्या है? एनर्जी के बारे में बात करना। एनर्जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल, है ना? एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, उसके बारे में हम बात नहीं कर पाते यहाँ पर। ठीक है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज Lagrange's इक्वेशन ऑफ मोशन इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। कितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कितनी इनिशियल कंडीशन चाहिए? अगर एक पार्टिकल है तो दो कंडीशन चाहिए, है ना? और अगर एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट मिल गया तो एक कंडीशन आपको मिल जाता है अपने आप। तो फिर आपको कितने कंडीशन चाहिए होंगे? एक ही कंडीशन चाहिए होगा, है ना? क्योंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेट मिलने से क्या होगा? सेकंड वाला कंडीशन अपने आप आपको पता चल जाएगा। ठीक है? एनीवे, सो दैट आर डिफरेंट इशू। लेट्स गो फॉर वन बेसिक प्रॉब्लम। पहले जरा ये बताओ, अगर मैं लैग्रेंजियन लिखूं ऐसा, मान लो ऐसा लिख दूं, क्या ये सही लैग्रेंजियन होगा? सपोज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए लिख रहा हूं, क्या ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? चलो, क्या ऐसा लिख सकते हैं? हम्म? लिख सकते हैं। क्या ऐसा लिख सकते हैं? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए? हम्म? नहीं लिख सकते।
देखो सबसे पहली बात, अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है, ठीक है, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आप किसको देखोगे? यू विल ऑलवेज सी द काइनेटिक एनर्जी पार्ट, यू विल ऑलवेज सी द जनरलाइज्ड वेलोसिटी पार्ट, ठीक है। अब यहाँ देखो जनरलाइज्ड वेलोसिटी हमने एक्स डॉट लिया है, वाई डॉट लिया है, मींस वी हैव 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, बट ये जेड कहां से आ गया? ये तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है ही नहीं। एग्रीड? सो जो वेलोसिटी है वो ही इधर हो सकता है या वो नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो है लेकिन वाई यहां नहीं है, बट ये चलेगा। आर गेटिंग माई पॉइंट? बट ये तो ब्लंडर है, ये कभी नहीं हो सकता है। ये क्या 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हो सकता है? यस। लेकिन क्या ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हो सकता है? नहीं, ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए नहीं होगा, बिकॉज डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में कौन बात करेगा? वो एक्स डॉट, वाई डॉट, जेड डॉट डॉट बात करेगा। एग्रीड और नॉट? क्या मैं लैग्रेंजियन ऐसा लिख सकता हूं? ये लैग्रेंजियन हो सकता है? क्यों? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है। क्यों, क्या दिक्कत है? के एक्स पोटेंशियल नहीं हो सकता है? एम जी जेड लीनियर पोटेंशियल नहीं हो सकता? नहीं, एम बी स्क्वायर मैंने एक्स डॉट वाई डॉट लिखा है, क्या ये लैग्रेंजियन नहीं हो सकता? 2D डिग्री फ्रीडम के लिए हो सकता है ना? बिकॉज यू हैव 2 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई, है ना? सो यू कैन हैव, यू मे बी हैव दिस टाइप ऑफ थिंग। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद हो सकता है ऐसा मिल जाए आपको, ठीक है। सो ये, और ये डायमेंशन भी देखो क्या है, क्यू आई डॉट स्क्वायर, ये क्या है? क्यू आई डॉट क्यू जे डॉट, सो हाफ एम बी स्क्वायर की तरह ही डायमेंशन है, सो देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम। ऐसा हो सकता है ना? लास्ट ईयर आपके जेस्ट के एग्जाम में इसी तरह का तो लैग्रेंजियन दिया था, ठीक है। सो यू कैन हैव दिस सॉर्ट ऑफ लैग्रेंजियन एनीवे। सो ये तो जस्ट हमने देखा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि व्हेन यू वांट टू सी द डिग्री ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट, which is more important, kinetic energy or potential energy? Kinetic energy. You will see the term of kinetic energy, उसमें कौन कौन से टर्म में qi dot है? So kinetic energy will just tell you about the dot term, है ना? So this will just tell you dot term and that will tell you all about what? Degree of freedom, ठीक है? तो ये आप दिमाग में रखोगे। चलो, लेट्स स्टार्ट विथ वन प्रॉब्लम, दैट इज बेसिक प्रॉब्लम। एंड इसी प्रॉब्लम से आपको ये समझ में आने लगेगा कि क्यों कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया था और उसका फायदा क्या होगा, ठीक है। सो मैंने डिलिबरेटली इस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया है, दैट इज हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी जेड डॉट स्क्वायर भी कर लो, है ना? दैट इज व्हाट जेड डॉट स्क्वायर, and this is Lagrangian for 3 DOF, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए लैग्रेंजियन है। सही लिखा है ये, है ना? कहां से पता चल रहा है? एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट, दिस इज ऑल अबाउट 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर है ये? ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू गो फॉर व्हाट आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। क्या क्या जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है बताओ जी यहां पर? ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स और वाई है। क्या है गरिमा? एक्स वाई जेड ऑल आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, क्योंकि जनरलाइज वेलोसिटी है तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट तो होगा ही होगा। अभी तुरंत बताया था। जेड क्यों जनरलाइज कोऑर्डिनेट है? कैसा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है अभी देखेंगे। सो व्हाट आर फर्स्ट जनरलाइज कोऑर्डिनेट? q1 इज x, q2 इज y, q3 इज z, ठीक है। जेड इसमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन जेड डॉट तो दिखाई दे रहा है, तो जब जेड डॉट दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब मोशन तो हो ही रहा है उसके अबाउट, ठीक है।
सो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए पहले आप जनरलाइज वेलोसिटी देखोगे, अगर वो जनरलाइज वेलोसिटी है तो उसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी होंगे। ओके, नाउ व्हाट इज द जनरलाइज वेलोसिटी? x dot q2 dot is equal to what? y dot q3 dot is equal to z dot. These are what? Generalized velocity. ठीक है, next, what are generalized momentum? So px क्या होगा? del l del x dot, क्या आ रहा है ये? mx dot. ठीक है, what is py? del l del y dot, ये है। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो लिखोगे। Always remember what is generalized momentum? Del L upon del Y dot is generalized momentum. समझ रहे हो? So this will be your my dot. ठीक है? What will be generalized third one? pz. pz क्या हो जाएगा? del L upon del Z dot is mz dot. ठीक है? Now, is that any cyclic coordinate? Yes. What is cyclic coordinate? Z. So you have del L upon del X is equal to what? Minus kx, which is not equal to 0. So it is not cyclic coordinate. Okay. Not cyclic coordinate. Del L upon del Y is equal to minus ky, which is not equal to 0. Not cyclic. Clear है ये? Next. Del L upon del Z, ये क्या हो रहा है? 0. So means Z is cyclic. Z is cyclic. So अगर Z cyclic है तो क्या कंजर्व होगा? PZ. So which implies PZ. What is PZ? Del L upon del Z dot. उसकी वैल्यू क्या है? mz dot. That must be constant, which is conserved quantity. So z डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम क्या हो रहा है? कंजर्व हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है वो भी हम देख लेते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो क्या होगा? d अपॉन dt del l अपॉन del x डॉट से पहले कर लेते हैं, x डॉट माइनस del l अपॉन del x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से क्या आ गया आपका? mx डबल डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0। देखो आ गया न्यूटन्स लॉ, F इज इक्वल टू ma। यस, d अपॉन dt del l अपॉन del y डॉट माइनस del l अपॉन del y इज इक्वल टू 0। क्या आ रहा है? my डबल डॉट प्लस ky इज इक्वल टू 0। हो रहा है ये? करते जाओ, साथ साथ करते जाओ, बैठे मत रहो। नाउ लेट्स गो फॉर थर्ड वन, d अपॉन dt del l अपॉन del z डॉट माइनस del l अपॉन del z इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हो रहा है? यहां से सेम निकल रहा है जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट के बारे में हमने बात की थी, है ना? हम क्या देख रहे हैं? mz डबल डॉट इज इक्वल टू 0। दैट मींस mz dot is equal to constant. So if you have cyclic coordinate, there is not any need to write equation of motion. अब फोर्स इक्वेशन, फोर्स क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है ना? अब मोमेंटम कांस्टेंट है तो फोर्स नहीं लगेगा। और एक्सटर्नल फोर्स कहां से डिफाइन होता है? दैट इज फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी। सो यू हैव टू सी दैट इन दिस पोटेंशियल एनर्जी देयर इज नॉट एनी रोल ऑफ जेड कोऑर्डिनेट। तो जेड डायरेक्शन में फोर्स ऑब्वियसली 0 होना ही चाहिए। ठीक है, सो यू कैन सी दिस थिंग। नाउ इसी का दूसरा पार्ट लिखो, फटाफट लिखो तो। ट्रांसफॉर्म दिस लैग्रेंजियन इनटू cylindrical coordinate. Transform this Lagrangian into cylindrical coordinates and identify the cyclic coordinates. And identify the
cyclic coordinates. So you can transform this Lagrangian. किस coordinate system में ले जाना है? Cylindrical coordinate, and identify the basically cyclic coordinate and write down equation of motion. And write down equation of motion. चलो फटाफट करो तो देखते हैं कैसे होता है. हाँ so for the cylindrical coordinate, x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, and z is equal to z. So you can easily find x dot, y dot, z dot. So you can write your Lagrangian. हम लोग पहले कर चुके हैं बाकी सारा चीज है ना. So your Lagrangian is basically half m r dot square r square theta dot square z dot square minus half k r square. You can easily have this thing. Now, what are generalized coordinate here? Yes, you have generalized coordinate. Q1 is equal to r, Q2 is equal to theta, Q3 is equal to z. So again, you have 3 degree of freedom and you have 3 generalized coordinate. ठीक है? Now, what is your generalized velocity? Q1 dot is equal to r dot, Q2 dot is equal to theta dot, Q3 dot is equal to z dot. ठीक है? These are your generalized velocity. What are generalized momentum? PR. क्या होगा? Del L upon del R dot. So what is this value? MR dot. ठीक है? Next is P theta. Del L upon del theta dot is equal to M R square theta dot. So now it is linear momentum or angular momentum? Angular momentum. ठीक है? What is this? Angular momentum. Next, Pz is equal to del L upon del Z dot is equal to what? Again, mz dot. Clear है ये? लिखते जाओ. Calculation करना पड़ेगा भाई, है ना? Now, what are cyclic coordinate? Let us check about cyclic coordinate. Del L upon del R, is that cyclic coordinate? No. Del L upon del R की वैल्यू क्या है? Is equal to m r theta dot square minus kr. Differentiate करोगे, है ना? Is that theta is cyclic coordinate? Yes, theta is cyclic coordinate. So this value is equal to 0. What is meaning of that? Meaning of that, p theta, which is constant. And what is p theta? mr square theta dot is constant. Let's say it has c1. इस constant की value c1 दे रहा है. Next, del L upon del Z, is that it is cyclic coordinate? Yes, it is also cyclic coordinate. So Pz is equal to mz dot, that is c2. Clear है? Now, you can see your angular momentum is also conserved as well as your linear momentum is also conserved. But angular momentum in which direction? Z cap direction. Why? It is moving in xy plane. Theta किसमें दिया हुआ है? xy plane में. So angular momentum will be in what? Z cap direction. So you have Lz as well as Pz is conserved. हो गया? समझ में आ रहा है ये? आप साथ साथ करते क्यों नहीं हो? जब मैं बताते रहता हूं तो आप बैठे रहते हो. हाँ, साथ साथ करते जाओ ना.
So now my question is that if you want to solve this problem, then Cartesian coordinate is good coordinate system or cylindrical coordinate is good coordinate system? Obviously cylindrical coordinate is good coordinate system because it will reveal two type of symmetry. ये दो तरह के कंजर्वेशन प्रिंसिपल दे रहे हैं. एक क्या दे रहे हैं? pz तो कंजर्व था ही, जो क्लासिक जो आपका बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी मिला था. एंड दूसरा LZ भी आपका कंजर्व है. भाई जो चीज कंजर्व हो तो कंजर्व ही होगा. ये आप दूसरी बात है कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, मैथमेटिकली वो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है. सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वो आपको मैथमेटिकली नहीं दिख रहा था. एग्रीड. लेकिन यही चीज हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लेकर जा रहे हैं तो दोनों ही सिमेट्री हमें दिख रही है. क्लियर है? क्योंकि ये वाला साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो वो तो 100% कंजर्व होगा. भाई सिस्टम में अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो है, बट आप उसे देख पा रहे हो कि नहीं, आपकी मैथमेटिक्स उसे रिवील कर रही है कि नहीं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट. सो आप देख रहे हो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को का कितना बड़ा रोल है आपको प्रॉब्लम को सही ढंग से करने में. नेक्स्ट वी हैव टू गो फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन. क्या थीटा और जेड में इक्वेशन ऑफ मोशन करना जरूरी है? नो, बिकॉज साइक्लिक कोऑर्डिनेट है वो अपने आप रिवील कर दे रहा है. सो देन वी हैव टू गो फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन इन व्हाट? आर पार्ट. और हम लोग आर पार्ट में जाएंगे. d upon dt del L upon del R dot minus del L upon del R must be equal to 0. और इसे हम सॉल्व करते हैं. क्या आएगा? लैग्रेंजियन कहाँ है? हाँ. सो यू हैव आई थिंक m r double dot minus m r theta dot square plus k r must be equal to 0. ठीक है ना? So this is your equation of motion. चलो. So now you can go into home and try to do this problem with a spherical polar coordinate. फिर बताना तीनों में कौन बेटर है, सिलिंड्रिकल बेटर है या स्फेरिकल पोलर बेटर है या फिर आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बेटर है. यू विल फाइंड द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट इज गुड फॉर दिस पर्टिकुलर. थीटा भी रहेगा, फाई भी रहेगा, बट वहां जेड के बारे में नहीं बात कर पाओगे, वहां फाई के बारे में आप बात कर पाओगे. यू विल फाइंड योर फाई इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट देयर, बट ऑब्वियसली जेड के बारे में नहीं बात कर पाओगे. वहां भी फिर एक ही रिवील हो रहा है सिमेट्री, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी एक ही सिमेट्री रिवील हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आगे बढ़े. चलो. So let's try to go for some basic problem. ठीक है. So let's go for particle in a ball. Particle in a ball whose equation is given by half b x square plus y square. क्लियर है? उसका इक्वेशन क्या दिया है? हाफ बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो ये किस चीज का इक्वेशन है? ये वो तो है ही. किस तरह का शेप का इक्वेशन है? सर्कुलर है. बताओ शिखा क्या शेप है? सर्कुलर नजर आ रहा है तुम्हें? हाँ, क्या शेप है जी? जोर से बोलो, जोर से. पैराबोलिक की ही तरह शेप है. सो पैराबोला को आप रोटेट कर रहे हो अबाउट जेड एक्सिस. सो व्हाट इज दिस? पैराबोलाइड. क्या कहते हैं इसे? पैराबोलाइड. वेरी गुड. सो दिस इज नोन एज पैराबोलाइड. मींस इसका शेप कैसा है? ये कुछ ऐसा शेप है. ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना?
So this is your z axis, this is your y, let's say this is your x axis. ठीक है? And it is also given that g is in obviously negative z vertical direction में, this is in a vertical रखा हुआ है. So this problem is 3-dimensional problem or 2-dimensional problem? 3 डायमेंशन है भाई. जब पैराबोलाइड है, पैराबोला को लेकर रोटेट करो, दिस इज व्हाट पैराबोलाइड. तो ऐसा ही तो शेप बनेगा ये, है ना. सो दिस हैज 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम. ओके, ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, देयर इज मास which is constrained to move on a surface of paraboloid. So this mass is constrained to move on a surface of paraboloid. Mass m is constrained to move on surface of paraboloid. So we have to write the Lagrangian in a cylindrical system. Why cylindrical system is important, we can see from the equation of constraint. Okay, and then we have to discuss equation of motion and the motion of the paraboloid. इसको देखने की कोशिश करेंगे. ठीक है? Sorry, motion of a particle in the paraboloid. So now, before writing the Lagrangian, what we have to do, we have to find the degree of freedom. ठीक है? So where should be origin? यही origin होना चाहिए. Yes. और इसका कोऑर्डिनेट हम x, y, z दे देते हैं. Yes. Okay. So what is equation of constraint here? Obviously this is equation of constraint दिया हुआ है यहाँ पर. आपको कुछ निकालना नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है. So your z is equal to half bx square plus y square. This is your equation of constraint. ठीक है? So what will be degree of freedom? What is degree of freedom? 3 into 1 minus 1, that is 2 degree of freedom. ठीक है? So there is 2 degree of freedom. Okay. So now अब हम अपना काम शुरू कर सकते हैं. So Lagrangian is nothing but kinetic energy minus potential energy. ठीक है? And अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 3 डायमेंशनल सिस्टम है तो लिख सकता हूँ हाफ m x डॉट स्क्वायर y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर minus mgz. I have keep this as a zero potential, then this is my higher potential, so I can use this thing. ठीक है? Now can you please tell me that this is a correct Lagrangian? Correct Lagrangian है? No. Why not? Degree of freedom आपकी कितनी आ रही है? 2, but you are using how many like generalized coordinate? 3. Degree of freedom आपकी 2 आ रही है and you are using 3 generalized coordinate, so obviously this is not correct. ठीक है? So हमें क्या करना पड़ेगा? इसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इसमें. जब तक इसका रोल इसमें नहीं इंट्रोड्यूस करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो. So अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखना चाहो then what you will do? You will just find the z dot from here and z you can write it easily. ठीक है? अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही लिखना चाहें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिख सकते हैं. So thing is that how you will write in the Cartesian coordinate? We can write z dot is equal to b x x dot plus y y dot. ऐसा ही लिख सकते हैं ना? If you want to write Lagrangian mathematically तो आप किसी में भी लिख सकते हो. There is not any problem. ठीक है? Clear है ये? Okay. So अगर मैं इसे चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं. There is not any problem. Half m x dot square y dot square b x x dot प्लस y y डॉट, इन सब का क्या ले लें? होल स्क्वायर माइनस mg एंड दैट विल बी हाफ b x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. यू कैन राइट दिस Lagrangian. क्या ये Lagrangian मैथमेटिकली सही है या गलत है? सही है. क्यों? डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 2 है एंड हाउ मेनी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट वी आर यूजिंग? 2 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट. सो मैथमेटिकली इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ये दूसरी बात है कि फिजिक्स इस काम नहीं, यहां से कुछ भी समझ सकते हैं. ठीक है?
नाउ लेट अस ट्राई टू सी, इस पूरे के पूरे को अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर दूं या फिर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चेंज कर दूं, देन व्हाट विल हैपन? z is equal to half b r square. यू कैन सी यहां पर हम तीन वेरिएबल का यूज कर रहे थे. लुक एट हियर, यहां पर देखो, बहुत ध्यान से देखो. क्या कर रहे हो भाई? ये हो गया, उसको स्क्वायर कर रहे हो? मत करो ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है. नाउ लुक एट हियर, z इज इक्वल टू हाफ बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यहाँ इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट में कितने वेरिएबल हैं? तीन वेरिएबल हैं. कितने वेरिएबल हैं? तीन वेरिएबल यूज करो. z इज इक्वल टू हाफ बी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर है. एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है. यहां पर इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट में कितने वेरिएबल है? टू वेरिएबल है. एग्रीड? और दिस वेरिएबल इज वेरी नाइसली डिफाइंड, है ना. सो यू हैव z इज इक्वल टू हाफ बी आर स्क्वायर, इजिली आप यूज कर रहे हो. सो ऑब्वियसली इससे और इन दोनों में से अगर मुझे चॉइस लेना होगा, तो विच कंस्ट्रेंट आई एम गोइंग टू यूज? आई विल ऑलवेज यूज this constraint. So this problem will be best explained into what? Cylindrical coordinate system. So हम क्या करेंगे? पूरी लैग्रेंजियन को किसमें कन्वर्ट करके ले जाएंगे? सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है? लेकिन एग्जाम में तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है. एग्जाम में एग्जामिनर देगा कि राइट डाउन दिस लैग्रेंजियन इन अ सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. बट मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्यों सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बेटर है. ठीक है? बिकॉज यू कैन सी it will simplify means what? You are using less variable to write the equation of constraint. Clear है ना? So let's try to go for, so ये suitable Lagrangian नहीं होगा. This is okay mathematics point of view, but this is not a Lagrangian which will reveal the physics of this particular problem. ठीक है? So अब हम क्या करें? इसे किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेकर जाएं? सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में. तो जब आप सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके जाओगे, देन व्हाट यू हैव टू डू? x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, z इज इक्वल टू z. ठीक है? एंड नाउ दिस लैग्रेंजियन इनटू सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज हाफ m r डॉट स्क्वायर r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर माइनस mg एंड z की वैल्यू z रख रहा है. ठीक है? नाउ इज दैट दिस लैग्रेंजियन इज करेक्ट वन? क्या ये लैग्रेंजियन करेक्ट है? नो. व्हाई? अगेन वी हैव 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, बट वी आर यूजिंग 3 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट. क्या क्या जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है? r, थीटा एंड z. ठीक है? सो दिस इज व्हाट. सो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू यूज इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट. किस फॉर्म में यूज करना पड़ेगा आपको? सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के फॉर्म में उसे यूज करोगे. सो यू कैन फाइंड द z डॉट. सो व्हाट विल बी योर z डॉट? b r r डॉट. लिखो फटाफट. सो यू हैव z डॉट इज इक्वल टू b r r डॉट. ठीक है? सो दिस इज योर z डॉट. सो नाउ वी कैन राइट ऑल दिस लैग्रेंजियन. अब आप इस पूरी लैग्रेंजियन को लिख सकते हो. L इज इक्वल टू हाफ m r डॉट स्क्वायर r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर. यहां क्या लिखते हैं? b स्क्वायर r स्क्वायर r डॉट स्क्वायर. ठीक है? माइनस m g b z के बदले बाई b r स्क्वायर. नाउ इज दैट दिस लैग्रेंजियन इज करेक्ट वन? यस. ये लैग्रेंजियन क्या है? करेक्ट है. क्यों करेक्ट है? because you have 2 degree of freedom and you are using how many generalized coordinate? 2 generalized coordinate. ठीक है? So let's go for, इसको थोड़ा सा सजा करके लिख देते हैं. डॉट वाले को एक साथ ले जाते हैं और थीटा वाले को एक साथ ले जाते हैं, r वाले को. Then we can write this Lagrangian as L is equal to half m 1 plus
बी स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी बी बाई 2 आर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज माई Lagrangian ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, नाउ इज दैट एनी साइक्लिक कोऑर्डिनेट? इज दैट एनी साइक्लिक कोऑर्डिनेट? क्या क्या जनरलाइज कोऑर्डिनेट है? आर और थीटा। इज दैट एनी साइक्लिक कोऑर्डिनेट? क्या है? थीटा इज योर साइक्लिक कोऑर्डिनेट। वेरी गुड। कैसे पता चल रहा है थीटा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है? वी हैव del L upon del theta is equal to 0. That means this Lagrangian is not explicit function of theta. ठीक है, थीटा डॉट है लेकिन थीटा नहीं है, ये आपको समझ में आना है। क्लियर है ये? सो दिस इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो क्या कंजर्व होगा? पी थीटा कंजर्व होगा। वेरी गुड। सो अगर पी थीटा कंजर्व होगा तो पी थीटा की वैल्यू क्या होगी बताइए? डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट, यही वैल्यू होगी पी थीटा की, है ना? एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट विच इज कांस्टेंट। ठीक है, सो डेल, so this value, so your angular momentum is conserved. And which direction? Angular momentum direction क्या है? Z cap direction, because this theta dot is in xy plane, है ना? जो xy plane में ही मोशन हो रहा है। क्लियर है ये? Now we have to write the equation of motion. क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट हमें क्या लिखना होगा? इक्वेशन ऑफ मोशन। सो लेट्स ट्राई टू राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो, टेक योर टाइम एंड राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो देखते हैं। सो वी हैव टू कैलकुलेट डी अपॉन डी टी डेल एल डेल आर डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 0. सो व्हाट विल हैपन? डेल एल अपॉन डेल आर डॉट, पहले कैलकुलेट कर ले। व्हाट इज दिस वैल्यू? एम आर डॉट 1 प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट डेल एल अपॉन डेल आर। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है क्योंकि बहुत जगह पर आ रहा है। सो ऑब्वियसली दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल, सो दिस विल ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। सो वी हैव एम आर डॉट स्क्वायर बी स्क्वायर आर, है ना? बी स्क्वायर आर प्लस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी बी आर। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नाउ ultimate thing is here, if you are going for d upon dt del L upon del r dot, then you are doing the total derivative with respect to time. So when you are doing the total derivative with respect to time, then r dot and r both are dynamical variable. So दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना होगा। क्लियर है? सो यहां जब आप डिफरेंशिएट करोगे इसे तो क्या मिलेगा? माइनस डेल एल अपॉन डेल आर लिख देता हूं क्योंकि ये तो हम लोगों ने कर रखा है। सो व्हाट विल हैपन हियर? एम आर डबल डॉट, इसे डिफरेंशिएट किया, इसे कांस्टेंट रखा, दैट इज 1 प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस दिस इज कैच, और ये जनरली बच्चे गलत करते हैं। सो यू हैव टू कीप दिस कांस्टेंट एंड यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस बिकॉज आर इज डायनेमिकल वेरिएबल। आर कैसा वेरिएबल है? ये डायनेमिकल वेरिएबल है। सो देन यू हैव एम आर डॉट बी स्क्वायर 2 आर आर डॉट। ठीक है, समझ में आया ये? एंड नाउ फटाफट लिखो आप आगे, माइनस एम आर डॉट स्क्वायर बी स्क्वायर आर माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी बी आर मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, और आप देख रहे हो ये 2 है और ये 1 है, सारा चीज दोनों में है। आर डॉट स्क्वायर आर इज देयर, बी स्क्वायर इज ऑल्सो देयर। सो दोनों क्या हो जाएगा? एक ही बचेगा, है ना? So that value is m r double dot 1 plus b square r square plus
एम आर डॉट स्क्वायर आर, और बी स्क्वायर इधर ले देते है ना, बी स्क्वायर, ये दोनों खत्म हो गया, माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी बी आर इज इक्वल टू 0। अब देखो इसी प्रॉब्लम को आगे बढ़ा करके ले जाते हैं। इफ समवन विल टेल यू एट r is equal to r naught the particle is moving in a circle, कहानी ऐसे भी हो सकती है। for at r is equal to r naught a particle is moving in a circle of radius r naught, ठीक है, वो उसका रेडियस r naught है। so what will be angular velocity? so what will happen? that means this is basically equilibrium point। r क्या है आपका, अगर आप इस पूरे प्रॉब्लम को देख रहे हो then what is your r? this is your r, isn't it? यही तो r है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। ये किसी एक फिक्स वैल्यू पे r इज इक्वल टू लेट से सम r नॉट, पर ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है मींस r डॉट की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। सो व्हाट विल हैपन एट r इज इक्वल टू r नॉट, r डॉट इज इक्वल टू 0, क्लियर है ये, एज वेल एज r डबल डॉट इज इक्वल टू ऑल्सो 0, ठीक है। तो ये अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये कहानी हो रही है, क्लियर है ये, हाँ। सो यू कैन यूज दिस इक्वेशन ऑफ मोशन, जब आप इस इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखोगे सो यू कैन एज्यूम एट r इज इक्वल टू r नॉट, r डॉट इज इक्वल टू 0, r डबल डॉट इज इक्वल टू 0 एंड थीटा डॉट इज इक्वल टू थीटा नॉट डॉट, ठीक है, जिसे आप ओमेगा भी कह सकते हो और ओमेगा नॉट भी कह सकते हो, ठीक है। सो आप इजिली ओमेगा नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो यहां से। क्या पुट करें, r की वैल्यू r डॉट r नॉट, एंड r डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, r डबल डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। सो यू हैव m सॉरी माइनस m r नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, कोई कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होगी, प्लस एम जी बी आर नॉट इज इक्वल टू 0। सो क्या वैल्यू आ रहा है ओमेगा नॉट की, रूट अंडर जी बी आर नॉट रूट अंडर जी बी आ रहा है सर, नहीं, ठीक है, रूट अंडर जी इंटू बी इज द वैल्यू, ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। अगर आप टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर नॉट, उससे आप लिख सकते हो, ठीक है। सो इस तरह के प्रॉब्लम भी आपके एग्जाम में हो सकता है। तो दिस आर एप्लीकेशन, जो सारा का सारा प्रॉब्लम को आप अप्लाइड करो। तो बेसिकली मोशन कैसा होगा इसका, मोशन कैसा होगा, ऐसे ऐसे नीचे आता रहेगा, है ना, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने के कारण नीचे क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। तो क्या आर की वैल्यू 0 हो पाएगी कभी, नहीं, आर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो पाएगी। सो दो पॉइंट के बीच में ये बाउंडेड, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और फिर ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज अ वन प्रॉब्लम जिसको क्या आप और भी एनालाइज कर सकते हो डिफरेंट वे में। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। चलो, so here is particle in a inner surface of cone of cone of half angle alpha, ठीक है, लगभग सेम टाइप के प्रॉब्लम होंगे। so particle inner surface of cone of half angle
एंगल अल्फा, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर दिस। ये एंगल हमारा अल्फा है, ठीक है। सो दिस इज योर मास m, ये हमारा मास m है, क्लियर है? ओके। So particle is constrained to move in a inner surface of cone under gravity. So G is in this direction. Agreed? So what we have to do? We have to write the Lagrangian of a system. We have to write Lagrangian in a spherical polar coordinate system. क्यों spherical polar है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है? We have to write Lagrangian is what? Spherical polar coordinate system. ठीक है? Okay. And then we have to discuss the equation of motion. ठीक है? चलिए जरा सा हम देखते हैं पूरी कहानी को। So what is equation of constraint? Theta is equal to alpha. Very good. So equation of constraint is theta is equal to alpha in a spherical polar coordinate. So spherical polar coordinate में पहले तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से ही शुरू करना है ना। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लैग्रेंजियन क्या लिखेंगे? t माइनस v, दैट इज हाफ m, सॉरी x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर माइनस एम जी जेड, ठीक है। यही तो हमें यही तो दिख रहा है। अब हम मैथमेटिकली कैसे चेंज करते हैं, दैट इज डिफरेंट इशू। सो मैथमेटिकली चेंज करने के लिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू r साइन थीटा कॉस फाई, y की वैल्यू r साइन थीटा साइन फाई एंड z इज इक्वल टू r कॉस थीटा, ये आपको पता है। एंड x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर की भी वैल्यू आपको पता है, ठीक है ना, बिकॉज ये हम लोगों ने पहले ही प्रैक्टिस कर रखा है ना। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू हाफ m r डॉट स्क्वायर r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस m g r cos थीटा, m g r cos थीटा, ठीक है। सो दिस इज योर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्लियर है? एग्रीड? सो दिस इज योर माइनस mgr cos थीटा, क्लियर है? ये इज दैट दिस लैग्रेंजियन इज करेक्ट? नो। क्यों नहीं है करेक्ट भाई? ये लैग्रेंजियन क्यों करेक्ट नहीं है? नहीं नहीं, क्यों करेक्ट नहीं है? बिकॉज इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है ना, बिकॉज 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। और आपने कितने इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट यूज कर रखा है? सॉरी, कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट यूज कर रखा है? 3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट यूज कर रखा है। सो ऑब्वियसली इट इज नॉट करेक्ट। आपको ये तो बताना होगा ना कि भाई ये कहां मूव कर रहा है, ये तो फ्री पार्टिकल के लिए है, ठीक है। सो यहां पर हमें क्या पुट करना पड़ेगा? थीटा इज इक्वल टू अल्फा, ये पुट करना होगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, so you can put theta is equal to alpha. So my Lagrangian is, so alpha dot की वैल्यू, so theta dot की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। if theta is equal to alpha, alpha की वैल्यू कांस्टेंट है, then theta dot is equal to what? 0. so you have to write half m r dot square, this part is 0, you have r square sin square alpha phi dot square minus mgr cos alpha, ठीक है। दिस इज वैल्यू ऑफ योर Lagrangian. इज दैट दिस इज करेक्ट Lagrangian? यस, इट इज करेक्ट Lagrangian। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी क्या है? 2 है, और हमने कितने ले रखे हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट? 2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट। इज दैट एनी साइक्लिक कोऑर्डिनेट? क्या साइक्लिक कोऑर्डिनेट है? फाई इज माई
cyclic coordinate. So you have del L upon del phi is equal to 0. You have del L upon del phi is equal to 0. Means which quantity is conserved? P phi is conserved. So you have P phi, and that is del L upon del phi dot is constant. कहां फंसे हुए हो? देखो, चेक तो करो, डेल एल अपॉन डेल फाई की वैल्यू चेक करो क्या आ रहा है. 0 आ रहा है तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है. हाँ, ठीक है. सो दिस इज कांस्टेंट. एंड व्हाट इज डेल एल अपॉन डेल फाई डॉट? एम आर स्क्वायर साइन अल्फा फाई डॉट इज कांस्टेंट. ठीक है. ये क्या बता रहा है भाई? क्या बता रहा है? लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या बता रहा है? एंगुलर मोमेंटम बता रहा है. कौन सा एंगुलर मोमेंटम बता रहा है? जेड डायरेक्शन का. कैसे पता चल रहा है? देखो यहाँ आर क्या है. व्हाट इज आर हियर? आर क्या है? दिस डिस्टेंस इज आर. ये आर है ना. सो व्हाट इज दिस आर साइन अल्फा? दिस डिस्टेंस इज आर साइन अल्फा. इजंट इट? सो आप एज्यूम कर सकते हो कि ये पार्टिकल मास m एक ऐसे सर्कल में रोटेट कर रहा है जिसकी रेडियस क्या है? आर साइन अल्फा. ठीक है. जिसकी रेडियस आर साइन अल्फा है, और ये कुछ ऐसा रोटेट कर रहा है. व्हाट इज फाई? फाई कौन सा एंगल है? एक्स वाई प्लेन में. फाई एंगल क्या है? एक्स वाई प्लेन में एंगल है. सो जेड, तो ये क्या बता रहा है? एक तरह से जेड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर रहा है. अगर एक्स वाई प्लेन में कोई रोटेट करेगा तो एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा? जेड डायरेक्शन में. सो दिस विल बी योर जेड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व. है ना. हाँ, साइन स्क्वायर अल्फा, दैट इज साइन स्क्वायर. पी थीटा कंजर्व होगा तो? नहीं नहीं, पी थीटा तो इंटायरली डिफरेंट है भाई. इसका डायरेक्शन ही है ये जेड डायरेक्शन. ठीक है. अगर पी थीटा होगा तो पी थीटा किसके बारे में बात करता है? पी थीटा इसके बारे में बात करता है, इसके अबाउट जो मोशन हो रहा है. एग्रीड. और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा मोशन. तो सरफेस, स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका एंगुलर मोमेंटम होगा. कोई एनकैप डायरेक्शन तुम्हें मिलेगा. ओके. सो दैट इज नॉट एक्स डायरेक्शन डिलिबरेटली. ये ब्यूटी है कि ये एक्स वाई प्लेन में है, बट पी थीटा इज गोइंग होल ओवर स्फीयर ना. सो कोई एनकैप डायरेक्शन में आपको मिलेगा. ठीक है. सो लेट्स गो फॉर. अब ये बताओ, फाई डॉट को तो लिख सकते हैं ना. फाई डॉट इज इक्वल टू सी अपॉन एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा. लिख सकते हैं? लिख सकते हैं. सो आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, फाई डॉट की वैल्यू उतनी कम होगी. आर की वैल्यू जितनी कम होगी, फाई डॉट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी. ये तो क्लियर है, बिकॉज फाई डॉट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर. क्लियर है ये? नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? Meaning of that, at the higher value of r, your particle is moving slowly. As it is going downward, the value of r is small, so it is very fast. तो क्या r is equal to 0 पर आ जाएगा क्या ये? r is equal to 0 पर नहीं आएगा, क्योंकि r is equal to 0 का तो ये फाई डॉट क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी. व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? मीनिंग ऑफ दैट, ये नीचे तो आएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से क्या होगा? ये ऊपर जाना शुरू होगा. सो इट विल बी बाउंडेड बिटवीन टू आर. है ना. दोनों के बीच में क्या होगा? ये बाउंडेड होगा. उसे हम कैसे समझ सकते हैं, वो जरा देखने की कोशिश करते हैं. कभी भी ओरिजिन पे नहीं आएगा. घूमते हुए कभी भी ओरिजिन पे नहीं आएगा. ऐसे स्लाइड करते हुए आ जाएगा, लेकिन घूमते हुए कभी भी नहीं आएगा. कौन सा? हाँ, मौत को. ठीक है. ओके.
सो लेट्स गो फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। सो इक्वेशन ऑफ मोशन को थोड़ा एनालाइज करते हैं। So obviously we have to go for what? D upon dt del L del R dot minus del L upon del R is equal to what? 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो क्या हो जाएगा? mr डबल डॉट माइनस mr साइन स्क्वायर अल्फा फाइव डॉट स्क्वायर प्लस mg cos अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो पूरी कहानी कैसे हो रही है। इस इक्वेशन ऑफ मोशन को जरा ध्यान से देखते हैं। So this value is equal to what? I can write mr double dot is equal to mr sin square alpha phi dot square minus mg cos alpha। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। F is equal to me। किस डायरेक्शन में है ये? अरे जेड डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन है। आर कैप डायरेक्शन। ये किसके लिए लिखा है आपने? आर के लिए लिखा है। सो दिस इज इन व्हाट? आर कैप डायरेक्शन। देखो क्या कहानी है वो जरा देखते हैं। दिस एंगल इज अल्फा। यहां पर आपका पार्टिकल है mg, m है। इसका हम एक कंपोनेंट ले सकते हैं mg। दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव आर कैप। ये है ना पॉजिटिव स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आर कैप की डायरेक्शन तो यही होती है। क्लियर है ये? ओके, नाउ mg एंड दिस एंगल इज आल्सो अल्फा। ये एंगल भी अल्फा है ना। सो व्हाट विल बी कंपोनेंट ऑफ mg इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ r? mg cos alpha। So this value is mg cos alpha। This value is minus mg cos alpha, you can see here। ठीक है ना। नाउ ये वाला भी तो कोई फोर्स ही है भाई। कौन सा फोर्स है? वैसा फोर्स है जो आर कैप पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, बिकॉज इट इज इन व्हाट? नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है ना। तो ये वाला जो फोर्स है ये किस डायरेक्शन लग रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन। कौन सा फोर्स है ये? एंगुलर फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जब रोटेट कर रहा है तो देखो क्या होगा। इट इज जस्ट गोइंग टू रोटेट इन सम सर्कल। उस सर्कल की रेडियस क्या है? आर साइन अल्फा। आर साइन अल्फा इसकी रेडियस है। तो इसकी एक कंपोनेंट जो इधर लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने के कारण। ठीक है ना। सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू m। ओमेगा की वैल्यू क्या है? फाइव डॉट। जेड एक्सिस के अबाउट हो रहे तो फाइव डॉट है। सो दिस इज m ओमेगा स्क्वायर। एंड व्हाट इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल? r साइन अल्फा। ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। एग्रीड? अब इसका कंपोनेंट इधर लोगे तो क्या होगा? दिस एंगल इज व्हाट? 90 डिग्री। सो व्हाट विल बी दिस एंगल? 90 माइनस अल्फा। ठीक है। सो द कंपोनेंट ऑफ दिस इज क्या होगा इस डायरेक्शन में? कंपोनेंट m फाइव डॉट स्क्वायर r साइन अल्फा cos 90 minus alpha, and that value is what? Cos 90 minus alpha is sin alpha, है ना। So this value is equal to m phi dot r sin square alpha। क्लियर है ये? सो सेम चीज आ रहा है ये। देखो इधर सेम चीज आ रहा है ये। आ रहा है ना। सो नाउ अब देखो ये फोर्स तो कांस्टेंट है। ये फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। ये फोर्स फाइव डॉट और आर एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे। ठीक है। जब फाइव डॉट छोटा होगा तो आर क्या होगा? बड़ा होगा। और जब आर छोटा होगा तो फाइव डॉट क्या होगा? बड़ा होगा, है ना। सो यू कैन कंपनसेट दीज टू फोर्स। सो जब ये बड़ा होगा इससे तो ये किधर चला जाएगा?
when this force is greater than this one, then particle will go up or down? up. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींच के उसको ऊपर ले जा रहा है। अब जैसे जैसे ऊपर होता जाएगा फाई डॉट क्या होगा, छोटा होता जाएगा, तो फिर क्या होने लगेगा, एकाएक ऐसा लगेगा कि इसकी वैल्यू कम हो गई, तो ये वाला फोर्स एक्ट करने लगेगा और उसे खींचकर नीचे लेने आएगा। अब जैसे नीचे आएगा फिर फाई डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी। एग्रीड? सो यू कैन सी दिस इज योर इक्वेशन ऑफ मोशन। हो सकता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल जाए जिसमें ये किसमें मूव करता चला जाए, सर्कल के अंदर मूव करता चला जाए। ठीक है, सो यू कैन सी दिस इज अ वंडरफुल प्रॉब्लम, वंडरफुल है ना। इस तरह के प्रॉब्लम आपके एग्जाम में कभी भी आ सकता है। ठीक है, सो अभी के लिए मैं यहीं पर स्टॉप करूंगा, लेकिन आप लोग अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे मेरे सामने फॉर अ दिस थिंग असाइनमेंट से, है ना। सो बुकलेट लाओ, निकालो, देना जरा 1 मिनट। सो तुम्हारे पास है बुकलेट? सतीश सर से ले लो जाकर। ट्यूटोरियल 1 में आओ। क्वेश्चन नंबर 2, ट्यूटोरियल 1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोगों ने कर ही लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हाफ एन आवर। क्वेश्चन नंबर 1 तो कर लियो, 1 छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ये कैसे नोट्स दिए जी? हाँ, क्या कर दिए इसको ऐसे?